जो आत्मनिर्भरता की बात आजकल चलती है, ये जब स्कोप की हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जॉब्स की बात करते हैं। एकलव्य के टैलेंट को प्रेफरेंस नहीं मिला। और मैं ये भी जानता हूँ कि लघु उद्योग भारती चाहती है कि सभी उद्योजकों का एक दूसरे से सहकार्य हो। और सरसंघ सारथी डॉक्टर मोहन बाबू। And I request everyone to please stand up when our Param Pujaniya Sarasangh Chalak arrives at the stage. A humble request to everyone. We will leave the venue only after Sarasangh Chalak ji leaves the venue. Thank you. I request Param Pujaniya Sarasangh Chalak ji and other dignitaries on the dais to offer floral tributes to Bharat Mata. We always begin program by invoking the blessings of our gods, and I now request Kumari Lakshmi Shri, please do the prarthana. ಬಂಟೂರೀತಿ ಕೋನೋರಿಯ ವೈಯರಾಮ 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 ಬಂಟು ರೀತಿ ಕೋನೋ ಶ್ರೀಯ ವೈಯ ರಾಮ ಬಂಟು ರೀತಿ ಕೋನೋ ಶ್ರೀಯ ವೈಯ ರಾಮ ಕೋನೋ ಶ್ರೀಯ ವೈಯ ರಾಮ ಬಂಟು ರೀತಿ ಕೋನೋ ಶ್ರೀಯ ವೈಯ ರಾಮ Past President All India Laghu Udyog Bharati, Shri Narayan Prasanna, President Laghu Udyog Bharati Karnataka, Shri Ravi Kumar, General Secretary Laghu Udyog Bharati Karnataka, Shri Lakshmi Shah, Treasurer Laghu Udyog Bharati Karnataka.
It is indeed a moment of immense honors and divine blessings for all of us to welcome our Param Pujaniya Sarasanga Chalak, Dr. Mohan Bhagwatji, amongst us this evening. Dr. Bhagwatji is a visionary leader whose life stands as a beacon of dedication, discipline, and devotion to the nation. Hailing from Chandrapur in Maharashtra, he belongs to a family deeply rooted in the values and ideals of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. After completing his post-graduation in veterinary sciences, Dr. Bhagwatji chose a life of service and commitment by becoming a full-time Sangha Pracharak in the year 1975. Over the decade, he has held several key responsibilities within the organization, including Joint General Secretary and General Secretary of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. In March 2009, Dr. Bhagwatji assumed the esteemed position of the 6th Sarasanga Chalak of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. Since then, he has been a guiding light for millions through profound wisdom, unwavering conviction, and deep sense of patriotism. We are also privileged to have amidst us today several senior functionaries of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, whose presence adds value and inspiration to the occasion. Dr. Krishna Gopalji, Sahasar Karyavaha. Shri Mukundji, Sahasar Karyavaha. श्री मंगेशजी भेंडे, अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख। श्री सुधीर जी, अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख। श्री भरत कुमार जी, दक्षिण मध्य क्षेत्र प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। श्री तिप्पे स्वामी जी, Dakshina Madhya Kshetra Karyavaha and Trustee of IMS Foundation. Shri Prakash Chandra Ji, Rashtriya Swayamsevak Sangh Pracharak and Organization Secretary, All India Lagu Udyog Bharati. Shri Sankal Chandji Bagarecha, Trustee, IMS Foundation. Please take adoption. I now request our State President, Sri Narayan Prasanna Ji, to kindly participate our Sarasanga Chalak Ji, Dr. Mohan Bhagwatji. मैं स्वयं इंडिविजुअल नहीं, इसे आप जो कहते हैं उसमें अधिकार को आज से कुछ कहना ये मेरे तो सभी बात है जिंदगी चाहेगी इतना दुनिया कैसा होता है, कई चर्चाएं सुनता, उसमें से कुछ बात नहीं आपके सामने लायक है, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा। MSME ये जो सेक्टर है
ये भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसको बल देने वाला, उसको संभाल के रखने वाला सा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर। कृषि सहकार एमएसएमई और इसके साथ कुटुंब के आधार पर चलने वाली अपनी आर्थिक गतिविधि, ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण दुनिया भर में जो आर्थिक उतार चढ़ाव आते हैं इसका भारत पर कम परिणाम हो सकता, और कभी कहीं से टैरिफ वगैरह लग जाते हैं। ऐसे अचानक आने वाले ऊटपटांग संकट जो है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने वाला भी यही उसका बल। इस दृष्टि से आज मैंने प्रदर्शनी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी जब ढूंढता हूं तो यहाँ जिनके स्टॉल लगे उसमें कुछ व्यक्तियों के उद्योग को भी देखने का मुझे मौका मिला है। तो हाल के 5-10 वर्षों में अपनी ये जो एमएसएमई है और आगे बढ़ रही है और दुनिया से स्पर्धा करने लायक धीरे धीरे बन रही है। जो आत्मनिर्भरता की बात आजकल चलती है उसको प्रत्यक्ष जमीन पर उतारने वाली ये बहुत बड़ी गतिविधि है एमएसएमई। दुनिया की जो प्रचलित पद्धति है उसमें उसी पद्धति में हम बढ़ते गए तो अनुभव है कि संपत्ति का, उत्पादन का केंद्रीकरण, जब ऐसा केंद्रीकरण होता है तो रोजगार कम हो जाते हैं अपने आप। मनुष्य पर निर्भर हो जाता है और पर्यावरण भी खतरे में पड़ता है। कई बातें हो तो मास प्रोडक्शन ऐसा हो, उसके चलते भी ऐसे ही हो। लेकिन लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, इनके द्वारा प्रोडक्शन बाय मासेस हो, उसके कारण रोजगार बढ़ता है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और मनुष्य तुलनात्मक दृष्टि से अधिक स्वतंत्र हो जाता है। और इसलिए कृष्णता का बहुत महत्व है और उसकी ओर हमारा ये सेक्टर बढ़ रहा है। हर जगह हम आगे जा रहे, हम उत्साह से आगे जाए ऐसा वातावरण भी धीरे धीरे, जैसा जितना गति से हमको चाहिए शायद वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से उस दिशा में बढ़ रहा है। तो व्यापारिक स्पर्धा में आगे रहना, देश के उत्पादकों को, देश के उत्पादनों को उत्कृष्ट बनाना, बाजार की स्पर्धा में भारत हमेशा आगे रहे ऐसा करना, ये सारी बातें हम कर, उस पर हमारा ध्यान है, ये अच्छी बात है। लघु उद्योग भारती के निर्माण के दिनों से मैं बहुत निकट से लघु उद्योग भारती के चलने की सारी प्रक्रिया का दर्शक रहा। अनंतराव भिड़े एक थे नागपुर में, उनके द्वारा इसकी नींव रखने का बहुत बड़ा काम हुआ। मैं भी नागपुर में ही था, तो लघु उद्योग भारती के सारे करने में जो विचार विनिमय वगैरह होता उसमें मुझे रखा जाता। मैं ये भी जानता हूं
कि लघु उद्योग भारती चाहती है कि सभी उद्योजकों का एक दूसरे से सहकार्य हो, हम भी आगे बढ़े, हमारे सह उद्योजक भी आगे बढ़े, हमारे उद्योग के कारण इस पर योगदान करने वाले और छोटे जो होते हैं उद्योजक उत्पादन करने वाले वो भी आगे बढ़े और दुनिया की इस उद्योग की व्यवस्था में हम एक और परिवर्तन लाना चाहते हैं। ऑडियो उद्योग तो एक वास्तव है, वो रहेंगे, रहने भी चाहिए और बाकी देशों में रहेंगे तो भारत में भी रहेंगे क्योंकि स्पर्धा है। लेकिन बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को पूरक हो, छोटे उद्योग बड़े उद्योगों को पूरक हो, इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न। कठिन बात है क्योंकि दुनिया भर में देखते हैं तो जो सारे अर्थ व्यापार चलते हैं, उत्पादन चलता है, मार्केट चलता है, ट्रेडिंग चलता है, इस सारे का मूविंग फोर्स ऐसे लगता है कि अधिकाधिक मुनाफा कमाए, यही एक इच्छा है। नुकसानी में तो कोई जाना नहीं चाहिए, लाभ तो होना ही चाहिए, लेकिन बाकी लोगों का कुछ भी हो हमको लाभ होना चाहिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति बाहर दिखती है। इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं सारी दुनिया के और आर्थिक जगत में आज हम देखें। मूल से उसको ठीक करना है तो ये जो वृत्ति है उसको बदलना, और लघु उद्योग भारती के स्थापना में एक उद्देश्य ये भी था कि उद्योजक अपने उद्योग जगत में परस्पर मिलकर रहे, देश के लिए भी और उद्योग जगत में बाकी सब जो लोग हैं उनके लिए भी मिलकर आगे बढ़े, एक दूसरे को साथ देना और सभी लोगों ने एक अच्छा रास्ता बनाना मनुष्य की आर्थिक उन्नति का। मनुष्य को वास्तव में, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से मनुष्य हो या देश हो, जब परावलंबी हो जाता है तो उसकी स्वतंत्रता व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय खतरे में पड़ती। इसका तो वो अनुभव करते ही, राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी करते हैं। तो मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता, इसका उद्घोष तो दुनिया में चलता है, लिबर्टी और इक्वालिटी। लेकिन लिबर्टी है तो इक्वालिटी नहीं, और इक्वालिटी है तो लिबर्टी नहीं। इस डायलेमा से निकलने के लिए फ्रैटर्निटी आवश्यक है। तो जो बंधुभाव का आचरण है वो केवल आपके हमारे आपस के व्यक्तिगत व्यवहार पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। तो जीवन के सभी अंगों में, उद्योग से लेकर सारी बातों, उस प्रकार का व्यवहार होता है और ऐसा व्यवहार होने से सभी लोग लाभान्वित रहते हैं, किसी को नुकसानी में नहीं जाना पड़ता, सभी का लाभ होता। ये संभव है कि आज दुनिया को दिखा देने की जरूरत है, और हम भारत के उद्योजक हैं, में ये परंपरा हमेशा रही। ये जो तीसरा फैक्टर है फ्रैटर्निटी, उसके आधार पर एक समय था भारत के इतिहास में, रिकॉर्डेड है हिस्ट्री। श्री विलियम डाल्रिम्पल की जो किताब है उसमें भी इसका रिकॉर्डिंग, ईस्वी सन 1 से ईस्वी सन 1600 तक हम कैसे चले थे इसका भी रिकॉर्ड है। और वो ये बताता है कि कृषि, उद्योग, व्यापार ये सब साथ चल रहे थे, एक दूसरे को पूर्व बनकर चल रहे थे। खेत में काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर से लेकर तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले बड़े व्यापारियों तक सबका एक सुंदर सहयोग, और उसके कारण सब में सुख समृद्धि, ऐसा एक जीवन का चित्र हमने तला किया था।
आज हमको फिर से उस चित्र को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय है। ये केवल हमारा विश्वास नहीं है, अभी दुनिया भी ऐसा मान। तो सारा करते समय हम लोगों को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात ऐसा हम करने जाएंगे तो सबसे पहली बात यही है कि अपनी उत्कृष्टता के कारण हमको दुनिया में एक वजन प्राप्त करना पड़ेगा। जो प्रदर्शनी लगी है उसमें दिखता है कि उस और हम तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी साख सारी दुनिया में बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तब हम जैसा करते हैं वैसा दुनिया को लोग, तो हम जो करना चाहते हैं वो एकदम सही है, सटीक है। ये होने के बाद भी उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा हम नहीं दिखा सकते तो दुनिया उसको नहीं माने। और हम आगे बढ़ रहे हैं, सब दृष्टि से हमारा सब अच्छा चल रहा है, ये जब सारी दुनिया देखती है तो फिर हमारा रास्ता सही है कि गलत है इसका विचार न करते हुए वो हमारा अनुकरण। और युगों के अनुभव से हमको पता है कि हमारा रास्ता सही है, क्योंकि हम जो करते हैं व्यापार सहित सारी बातें, उसमें स्पर्धा से ज्यादा कर्तव्य और सेवा का भाव होता है, जिसको हम नाम देते हैं धर्म। धर्म से चलते, व्यापार भी हमारा धर्म है। व्यापार में आजीविका चलती है, व्यापार से कमाई होती है, ये हमारी परंपरा में हमारे लिए एक बाय प्रोडक्ट है जो आवश्यक है जीवन चलने के लिए। परंतु मुख्य बात है कि ये सारी बातें हम इसलिए करते हैं कि समाज को चलना है, तो समाज को हमको चलाना है। समाज चलेगा तो हम चल सके, और ये समाज ऐसा है कि वो अपने आप को एक मर्यादा में नहीं रखता। वो व्यक्ति से शुरू होता है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से गांव, गांव से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश, देश से सारा जगत, मानवता और सृष्टि सहित पूरा विश्व। ऐसे उस अपनेपन का प्रसारण होते रहते, तो हमारा दायरा हमेशा बढ़ते रहे। हम छोटा नहीं सोचते, हम छोटे हैं, छोटे से प्रारंभ करते हैं, लेकिन हम बढ़ते चले जाते हैं, और जितना व्यापक सोचेंगे उतना हम ज्यादा श्रेष्ठ माने जाएंगे। ऐसे अपनी यहाँ की परंपरा है, और इसलिए हम लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा, वो सोचने के लायक हम बन रहे। ये बड़ी आनंद की बात है। हर तो देखता ही हूं, लेकिन एक साथ यहाँ सब देखने को मिलता। ऐसे समय में हम कहीं भी जाकर आत्मविश्वास से, हमारे जैसे लोग जो उद्योग जगत को नहीं जानते, उद्योग चलाना नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं हमारे लोग, वो इस विचार से बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जब देखते हैं वो हम भी दुनिया के सामने सर ऊंचा उठा के आपके तरफ से बात कर सकते। इससे आपका भी लाभ है, हमारा भी लाभ है, और हमारा और आपका लाभ यानी व्यक्तिगत मेरा और आपका लाभ नहीं है, वो पूरे देश का लाभ, और अपने देश का लाभ सारी दुनिया का लाभ। तो उद्योजक के नाते हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे सर पे इतना बड़ा दायित्व है, और इतना बड़ा दायित्व होने के नाते हमको ये शक्ति भी प्रकृति से या भगवान से, जैसी आपकी मान्यता है, वो मिली। उसका प्रगटीकरण मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। इसको रोकना नहीं, इसको ऐसे ही चलने देना, अधिकाधिक बढ़ाना, और एक दिन संपूर्ण दुनिया एक सुखी सुंदर दुनिया बनकर चले। इसलिए दुनिया का अर्थ व्यापार, दुनिया के उद्योग, दुनिया की कृषि, ये सारी बातें जैसी चलनी चाहिए वैसी चल रही है, ऐसा हम देखेंगे। इस दूरगामी दृष्टि से हम लोगों को अपना अपना काम करना है। ये विचार मेरे मन में आया, आपके सामने रख दिया। मुझे बताया गया कि आप प्रश्न पूछेंगे, तो जितना समय उसमें
मैंने पहले बता दिया मैं उद्योजक नहीं हूं और नीति और सरकार के बारे में कुछ बोलने की अधिकार मैं नहीं, इसलिए उसको छोड़ के मैंने जो बताया उसके बारे में आपको पूछ रहा है, आप पूछ। नमन, मैं ज्योत्सना पै, उद्योजिका बेलगावी से। मेरा क्वेश्चन स्किल डेवलपमेंट और एकेडमिक्स के बीच में का है। अपने पास जो बच्चे कॉलेज से आ रहे हैं, इंडस्ट्री लोगों का कंप्लेन है कि वो एम्प्लॉयबल नहीं है, लेकिन एकेडमिक्स ऐसा है कि बहुत पुराना सिलेबस है, बच्चे अपडेटेड नहीं हैं, उनका भी दोष नहीं है। तो उनको स्किल कैसे करें, और जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज अवेलेबल है वो बहुत ही जेनरिक है, वो एरिया की इंडस्ट्री का मन में रखे हुए कोर्स किया जैसा नहीं है। तो कैसे ये ब्रिज करे स्किल का और जो एकेडमी का, उसको ही रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी, कि अपने जो बहुत ही होशियार बच्चे जो अच्छे कॉलेज से निकल रहे हैं, वो कॉलेज के दिन से ही बाहर जाने का सोच में, उससे अपना ब्रेन भी हो रहा है और बहुत कुछ घर सिर्फ बुढ़े माँ बाप से एम्प्टी नेस्ट होके पड़े हैं। कैसे हम ये बच्चों को बाहर जाने से आइडिया से रोक सके, अपने को मार्गदर्शन कीजिए। पहले प्रश्न में ऐसा है कि धीरे धीरे हमारा एजुकेशन मनुष्य को एम्प्लॉयबल नहीं बना सा, इस फैक्ट को जानकर इसमें बदल आवे ऐसा अपना एकेडमिक्स में विचार चल रहा है, और उसके अनुसार नीति जैसी बदलनी चाहिए उस दिशा में थोड़ी थोड़ी बदल रही। तो हम आशा करते हैं कि वो प्रक्रिया चले और पूर्णतः इसका इलाज शिक्षा में हो जाए, परंतु अकेले शिक्षा पर ही वे नहीं होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन और लैबोरेटरी एक्सपीरियंस ये तो शिक्षा में मिल जाए, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए उनको प्रत्यक्ष काम करना पड़े। तो शिक्षा में पुस्तकें, क्लासरूम और लेबोरेटरी के बाहर जाकर इंडस्ट्री में उम्मीदवारी करनी, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे सीखना, जो हाथ से कर रहे हैं उनके अनुभव से भी सीख, क्यों कई बातें पुस्तकों में नहीं रहती, वो अनुभव से ही आती। तो इस प्रकार उसमें कुछ पेयरिंग करना पड़े, यानी विद्यार्थी हमारा क्लासरूम लेबोरेटरी वर्क करे, साथ साथ आसपास की इंडस्ट्रियों में जाए। तो ये शिक्षा नीति में भी करना पड़ेगा, और अपने देश के विभिन्न प्रकार के उद्योजकों को भी इसके लिए अपने इंडस्ट्री में ऐसे अप्रेंटिसेस रखने पड़ेंगे, उनको एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा, बाद में उन्हीं के उपयोग में वो आएगी। तो इसका इनिशिएटिव दोनों तरफ से होगा। मैं मानता हूं कि पहले ये अपने देश के शिक्षा जगत से होना चाहिए, उद्योजक जो तैयार होंगे, क्योंकि ऐसे अप्रेंटिसेस ट्रेंड मिलना ये उनके लाभ की ही बात, और इस बात को समझते हैं कि अनुभव के बिना व्यक्ति तैयार नहीं होता, और तैयार व्यक्ति अपने देश की आवश्यकता है, इसलिए दोनों बातें होनी पड़ेगी। तीसरी बात है कि हमारे बच्चों को हमको एक सपना देना, हम आज जो उनको सपना दे रहे माँ बाप, वो ये दे रहे हैं कि तुम कमाओ और कम श्रम में ज्यादा गाओ। कमाना किस लिए है ये नहीं बता रहे, और इसलिए स्वाभाविक वो ये देखता है कि कम श्रम में ज्यादा कमाने का अवसर कहाँ है। तो एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा है, लेकिन उसमें रिस्क है, वो लेने की उसकी तैयारी कम रहती है। जहां फैसिलिटीज है वहां जाने को मन करता है, जहां फैसिलिटीज नहीं है
ऐसे रीजन में काम करके उसको डेवलप करना और आप फैसिलिटीज उत्पन्न करना, ये हिम्मत करने की उसकी तैयारी नहीं। साथ साथ ये जाएंगे विदेश में तो क्या करेंगे? नौकरी करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अपनी इंडस्ट्री करेंगे तो भी दुनिया के कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। तो आपकी आइडेंटिटी भारत की ऐसी ही है, आप कहीं भी जाओ। तो आखिर भारत का होने से हमको कोई वेटेज मिलना है तो हमको भारत को बड़ा करना पड़ेगा, और भारत को बड़ा करना पड़ेगा तो सीखे शायद हम दुनिया भर से भी, परंतु करने के लिए भारत में वापस आ जाए, ये करना पड़ेगा। ये सारी बातें उसके मन बुद्धि में हमको संस्कारों से भरनी पड़ेगी। आज हम उसको केवल आर्थिक प्राणी मानकर कमाने की शिक्षा, कमाने के लिए अर्ज, ये सब दे रहे। लेकिन तुम उत्कृष्ट करो, अपने लिए मत करो, सबके लिए करो। जैसे आप अपना उद्योग चलाते हो, तो आप उद्योग चलाते यानी केवल प्रोडक्शन नहीं करते, आपके उद्योग में एक छोटे मजदूर और चपरासी से लेकर तो आप तक जितने प्राणी हैं उनके जीवन की व्यवस्था करते, इस भाव से करते हैं। अपने उद्योग को एक परिवार मानते हैं, उस उद्योग को पूरक जो जो लोग हैं उनको उस परिवार में उस आत्मीय भाव से शामिल करते, तो आपका उद्योग बहुत अच्छा चलता है, उसका सबको लाभ होता है। ये सारा भाव सब करने में आने के लिए उसका कुछ ये ट्रेनिंग घर में और शिक्षा में भी होना चाहिए। उसकी कमी है, वो उनको पूरी करनी पड़ेगी। तो अब आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको वहां मिलेंगे। Namaskar, myself Manjunath Thogar, Bidar, Karnataka. I would to ask a question about Atmanirbhar Bharat, vocal for local. As we all talk about vocal for local and Atmanirbhar Bharat, but despite among the strong motivation among people, progress seems slow. And what in your opinion are main challenges that are stopping us from turning these ideas into reality and achieving truly Manohar Bharat? सो वोकल फॉर लोकल, ये तो ड्रीम है, लेकिन अभी तक हम जो चलते आए अभी तक वो वोकल फॉर लोकल के लिए नहीं चले। वी कॉम्पिटेड विद द वेस्ट, तो उनकी जो पद्धति है उसके अनुसार चल। उसमें वोकल फॉर लोकल के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो इकोसिस्टम चाहिए, वो नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। वो हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। साथ साथ भी स्पिरिट जगा है लोगों को, और वो करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा करने वालों के लिए ईज ऑफ बिजनेस, ऐसा करने वालों के लिए प्रतिष्ठा, ऐसा करने वालों की वर्ल्ड कंपटीशन को फेस करने के लिए उनको कुछ असिस्टेंस, ये सारी बातें हमको प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, नीति में भी लानी पड़ेगी, स्वभाव में भी लानी पड़ेगी। तो एक प्रोसेस है, वो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, उसकी गति बढ़ानी पड़ेगी। पूरा जब हम कर लेंगे तब हमको इसका पूरा फल दिखाई दे, तब तक ये कठिनाइयाँ रहेगी। और इसलिए जो मन से चाहते हैं वोकल फॉर लोकल, उनको पायोनियर्स के नाते एक कष्ट सहन करके धैर्यपूर्वक कुछ वर्षों तक काम आगे बढ़ाना पड़े। तो ये चेंज आने वाला है, ये पक्का है। चेंज आने के लिए थोड़ा समय लगे, तब तक बाकी लोगों की हिम्मत ना टूटे, अपनी भी ना टूटे, इसको हमको करना पड़े। परम पूजनीय श्री मोहन भागवत जी, जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति बात करते हैं
तब हमारे सामने एक बड़ी चुनौती कुशल श्रमिकों की है। कुशल श्रमिक लेबर। आज के युवा वर्ग एमएसएमई क्षेत्र में कार्य करने के प्रति कम रुचि दिखा रहा है। ऐसे में एक राष्ट्र के रूप में हम इस चुनौती को कैसे दूर करें, इसमें आपका क्या विचार? वैसे उत्तर आ गया है। लेबर की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, श्रमिक की प्रतिष्ठा। आज श्रमिक होना ये डिग्निटी का काम नहीं माना जाता समाज। ब्लू कलर और व्हाइट कॉलर, इसमें समाज लोग क्या प्रीफर करेंगे? ऐसा देखते हैं तो वो आराम से कमाना पसंद करें। एमएसएमई में जाना है तो परिश्रम करना पड़ता है, तो वो उसके लिए तैयारी चाहिए। ये माइंडसेट बनाना। बहुत साल हम लोग आक्रामक लोगों के नीचे रहे, तो हमारा जो था वो तो नष्ट हो गया। अंग्रेजों ने तो एक एक करके ऐसे हमारी इकोनॉमी के सारे आधार खत्म कर दिए। लेकिन हमारे पूर्वजों के पराक्रम से और भगवान की दया से हमने फिर से वो खड़ा किया। जैसे उद्योग हमारे नष्ट कर दिए थे, परंतु अंग्रेजों का वो डोमिनेंस सहन नहीं किया हमारे लोगों ने और अपने उद्योग खड़े किए उन्हीं के ज़माने में। तो ये जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के आधार पर चलना है तो श्रम की प्रतिष्ठा मेरे मन में चाहिए। यानी कोई अपने हाथ से काम करने वालों को मैं निचले स्तर का नहीं मानता, और मैं स्वयं हाथ से काम करने के लिए शर्माता नहीं। ये बच्चों में उत्पन्न करना पड़ा तो ये धीरे धीरे बात हो जाए। मूल की बात मैं कह रहा हूं, ऊपर ऊपर की इलाज कितने में हुए तो हुई, अंत में बात यही आती। परिश्रम करके मैं अपना मालिक बनता हूं, मैं छाता ही हूं और 50 लोगों के खाने की व्यवस्था करता हूं। इससे ज्यादा बिना परिश्रम के ऑफिस में बैठकर मैं अकेला खाता हूं, बहुत खाता, जिसको ज्यादा अच्छा मानते हो। ऐसा अभी भी ये वृत्ति जानी चाहिए, ये स्वभाव। और आप लोग जो कर रहे हो उसके जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है। लोग उत्कृष्टता में और स्पर्धा में दोनों जगह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। परिश्रम पहले जो लोग होते हैं उनको बहुत कष्ट करना पड़ता है। बाद में ये राजमार्ग बन जाएगा तो वो सारी भीड़ इधर आएगी। तो ये आपके करने से होने वाला है, लेकिन वो होते तक आपके मन में ये प्रश्न रह सकता है। क्योंकि उसका उत्तर यही है कि एक वृत्ति है, खुद परिश्रम करके कमाऊंगा और भी मेरे कारण 10 लोगों की कमाने की खाने की व्यवस्था होगी, ऐसा मुझे करना, ये मेरा लाभ है, ये मानना। और उसके लिए परिश्रम जो करते हैं उनका आदर सम्मान, स्वयं परिश्रम करने की तैयारी, ये रख, ये स्वभाव हमको बनाने। We will have another 1 or 2 questions. Anyone from the audience to have it? नमस्ते गुरुजी, आपको देखने का मौका मिला, हमारा भाग्य है। सर, छात्र लोग जब एजुकेशन करते हैं, जनरल मेरिट का छात्र जब 6% करता है उसको प्रेफरेंस नहीं मिलती। नेचुरली टैलेंट बाहर जाकर काम करते हैं, माइग्रेट हो जाता है। आत्मनिर्भर बनने करने के लिए टैलेंट को इधर रखना होगा। सो कंप्लीट माइग्रेशन हो, ये जाति के वजह से, जाति के सिस्टम के वजह से ये टैलेंट को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। वोट बैंक के लिए सब लोग ये जाति सिस्टम ऐसा ही गवर्नमेंट में सर, no political questions please. हो जाएगा सर, इसको कैसा हैंडल करेंगे सर? तो जाति को प्रेफरेंस और टैलेंट को सेकंड नंबर, ये अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये महाभारत
में शुरू होने के लक्षण हमको दिखते हैं ना, एकलव्य के टैलेंट को प्रेफरेंस नहीं मिलती। तो दिस इज ए मेलोडी वी हैव टू फाइट एंड मेक इट अवे विद। उसके लिए स्वतंत्रता के बाद कुछ मेजर्स दी, तो प्रामाणिकता से लागू करने से वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। बात व्यवस्था की नहीं है, बात ऑनेस्टी की है। टैलेंट जो बाहर जा रहा है उसमें दोनों प्रकार के लोग, जो जनरल कैटेगरी है वो भी बाहर जाती है, और जो स्पेशल ऐसे इनको मेजर्स मिल रहे हैं उसमें से भी लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने का कारण भौतिक सुख का आकर्षण, स्कोप नहीं, ये नहीं है। ये जब स्कोप की हम बात करते हैं तो ज्यादातर जॉब्स की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, जॉब्स यानी किसी की गुलामी है ना एक तरह से। कोई भी समाज जॉब्स कितने देगा? दुनिया की कोई भी सोसाइटी अपने लोगों को प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के 30% से ज्यादा जॉब नहीं दे सकती। बाकी सब लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, परिश्रम से अर्जन करना पड़ता है। कंपटीशन जॉब्स की भी है, और जहां परिश्रम करना है वहां स्कैर्सिटी है। ये एक इलाज करने का विषय। दूसरा विषय ये है कि हम लोगों को क्या लगना चाहिए अगर हमको समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत चुना करना है, तो कि थोड़ा मुझे कम मिले तो भी मैं अपने देश में रहूं। लेकिन ये घर में और विद्यालयों में संस्कार मिलना चाहिए। आज हम कह रहे हैं कि टैलेंट बाहर जा रहा, बाहर भेज कौन रहे? माता पिता भेज रहे ना। माता पिता प्राइमरी से इंग्लिश मीडियम में डालकर इसकी व्यवस्था करते हैं कि वो बाहर जाए। मेरी बात गलत नहीं है? आप सर्च करके देख ली, तो हम जिधर भेज रहे उधर वो लोग जा रहे हैं। अब ये होने के बाद भी अनेक प्रकार से आदमी सीखता है, तो जिनको ये सीख मिलती है कि देश के लिए कुछ करना है, तो एक दूसरा प्रवाह भी शुरू हुआ है। अनेक लोग वहां जाके सीखते हैं और सीखने का उपयोग अपने देश में आकर करते हैं। ये स्ट्रीम भी शुरू हुआ है और वो बढ़ रहा है। इसलिए लोग बाहर जाते हैं, इसका कारण व्यवस्था नहीं है, इसका कारण एक मानसिक, उसमें एक कारण टैलेंट को प्रेफरेंस नहीं है, कास्ट को प्रेफरेंस है, ये है। लेकिन वो एक तरफ की मेलोडी नहीं है, वो पहले दूसरी तरफ भी थी। उसके प्रतिक्रिया में कुछ लोग पीछे हो गए, उनको बराबरी में लाना तो कुछ देना पड़ेगा, और वो बराबरी में आए हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। हम जाएंगे पूरे भारत में तो हम देखते हैं कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चलता है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए परंपरा से जिनको मिलते आया उन्होंने सोच रहा कि उनको 200 साल तक कुछ नहीं मिला, 2000 साल तक हमको मिला, अब वो हमारे बराबरी में आए, इसलिए हम थोड़ा छोड़ दें, उनको मिले पहले ऐसा करे, तो अपने ही लोग हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सब बड़ा मन करके सोचना, लेकिन वो कारण नहीं है मेरे लिए। जो आदमी परिश्रम करने के लिए तैयार है उसको स्कोप है, irrespective of caste and irrespective of what facilities he gets। देश में हजारों लाखों उदाहरण है, लेकिन ये सोचने की बात है। इफ वी थिंक वी कैन, वही भी ये बनाना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत व्यवस्था में सफाई वगैरह करने की जरूरत है, उसमें नकारता नहीं उसको, लेकिन आखिर वो होगी तब जब ये ऑनेस्टी रहेगी कि हमको ऐसा देश खड़ा कर जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो फिर समानता भी आएगी, ऐसे मेजर्स भी नहीं रहेंगे, और सब लोग देश के लिए काम करके देश को बड़ा करेंगे, खुद भी बड़े होंगे, दुनिया को भी बड़ा।
परम पूज्य सर संचालक जी नमस्कार। मेरा नाम रजत सेठी है और मैं लेज़र की टेक्नोलॉजी से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ लेज़र के वेपन्स बनाने के उद्देश्य से। मेरा प्रश्न बड़े उद्योगों को लेकर है। बड़े उद्योग, अगर आप जो गिने चुने नाम है 10-15 बड़े उद्योगपतियों के, उनके आप टर्नओवर देखेंगे 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के हैं, लेकिन जो R&D का एक्सपेंडिचर ये बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं वो नगण्य होता है, 30 करोड़ 40 करोड़। अगर ये व्यवस्था चलती रही तो जो बड़ी मछलियों के नीचे छोटी छोटी मछलियाँ बनती हैं, जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, अगर ये बड़े वाले प्लेयर्स अगर स्पेंड नहीं करेंगे, PhDs को हायर नहीं करेंगे, तो हमारे जितना टॉप टैलेंट है वो बाहर जाएगा ही। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे बड़े उद्योगपति रिसर्च और डेवलपमेंट में उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। आज मेरे लिए विदेश की बड़ी कंपनियों से काम करना ज़्यादा आसान है कि बनिस्बत यहाँ की बड़ी कंपनियों के साथ। अगर मैं अपनी कंपनी को अमेरिका में ले जाऊँ तो वो ज़रूर हाथ मिलाना चाहेंगे मुझसे, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए जो लघु उद्योग हैं उनके साथ उनको ग्रो होता हुआ देखना, उनके लिए जगह छोड़ना, वो प्रयास होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ विशेष रूप से बड़े उद्योगपतियों के लिए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है लघु उद्योगों को ऊपर उठाने की। धन्यवाद। जो आपने कहा वही जिम्मेवारी है, और ये तो नहीं रहा है, कुछ मात्रा में सत्य तो है ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदल भी रहा है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये होने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे नुकसान दोनों का है, छोटे उद्योगों का भी है और बड़े उद्योगों का। अब ये समझ के देश को बड़ा करना है तो जो मैंने बात भाषण में कही कि बंधु आओ, तो एक इनक्रेडिबल जापानीज नाम की किताब है, वो कभी 80 के दशक में 2 अर्थशास्त्री और 2 समाजशास्त्री ने भारत के मिलकर, जापान उस समय बाजारों का राजा था, उसके प्रगति को देखकर सर्वे करके सारा डाटा निकाल के उनके प्रगति पर उसके कारण क्या है वगैरह लिखा। उसमें अंत की पृष्ठ पर 9 कारण दिए हैं। 9 में से पहले 5 इंडस्ट्री वगैरह से संबंध नहीं रखते। वो कहते हैं कि जापान के लोग आगे हैं क्योंकि जापान के लोग देशभक्त हैं। जापान के लोग आगे इसलिए है कि वो अपना वेंचर अपने अकेले का विचार नहीं करते, अपने अकेले परिवार का विचार नहीं करते, कम से कम अपने गांव का विचार करके चला। जापान के लोग इसलिए आगे हैं कि वो अनुशासित। जापान के लोग इसलिए आगे हैं कि वो अपने देश के लिए कोई भी साहस करने के लिए तैयार है। जापान के लोग इसलिए आगे हैं कि वो अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का घाटा मोल लेने के लिए तैयार है। बाद में वो कहते हैं कि जापान के लोग इसलिए आगे हैं कि वो 0 एरर पर जोर जाए। जापान के लोग इसलिए आगे हैं कि वो इंडस्ट्री को अपना परिवार मानकर अपनी इंडस्ट्री चलाए, इसलिए आए। ये सारी बातें बड़े उद्योगों में होनी ही चाहिए, नहीं तो बड़े उद्योग भी टिक नहीं सकेंगे। आखिर यही अनुभव आया कि मेरी इंडस्ट्री किसी बाहर के उद्योग के साथ मैं चलाऊं तो मेरा लाभ है, यही होते रहा तो फिर मजबूरन जाना पड़ेगा। और जाने से कंपटीशन में बाहर के बड़े उद्योग आगे आएंगे, अपने बड़े उद्योगों के लिए जगह नहीं रहेगी। तो either this knowledge should dawn on them and they should change, or the conditions will compel them to do this. वो बारी ना आने देना, हमने करना। और इसे हम लोग जो कर रहे हैं हम ऐसा करें। बाकी ऐसे बड़े लोग मिलते हैं तो उनके सामने मैं ये बात रखूंगा कभी हो कि भाई पैसा क्यों कमाना है, अपने को केवल बड़ा नहीं करना है, इतना सारा देश साथ में उसको बड़ा कर, केवल अपना नाम नहीं होना है, हमारे देश के लोगों का नाम। ये मैं रखता हूँ उनके सामने। थोड़ा 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 बदल रहा है, ऐसा मुझे लगता। जल्दी बदले तो सबका फायदा है, देर से बदले तो बदलेगा जरूर, लेकिन मार खा के बदले। One more question we will have. Yeah, please. गुरु जी प्रणाम, मैं प्रशांत देवसुर लघु उद्योग भारती हुबली से हूँ। मेरा एक प्रश्न है एजुकेशन के लिए। तो
हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी को भारत में एंट्री दिया है, तो उसका अगले 5 या 10 साल में हमारे सांस्कृतिक संतुलन पे क्या असर हो सकता है? टेक्निकली देखा जाए तो बहुत बुरा असर है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो स्थिति है हमारे यहाँ पर, हमारी जो यूनिवर्सिटीज है यानी उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर जो हमारी पद्धतियां हैं, हमारा ज्ञान है, उसका अध्ययन बड़ी जोर से शुरू हो। और हमारी इस परंपरा में आज एप्लीकेबल बहुत कुछ है। जैसे पराशर ऋषि ने वृक्षायुर्वेद लिखा है, उसमें सभी बातें, मीटियोरोलॉजी वगैरह सारा है। उसमें एक ऐसा है कि पौष मास में पूरे महीने भर दिन के हर घंटे हवा कैसी बहती है, ऐसा रीडिंग अगर आपने एक जगह पर लिया तो अगले साल भर उस जगह पर रोज क्या रहेगा, वेदर, वर्षा होगी कि नहीं, कितनी होगी, कहाँ होगी, इसका प्रेडिक्शन आप कर सकते। एक यूनिवर्सिटी ने इसका रिसर्च किया और उन्होंने एक जगह पर ऐसे रीडिंग लिए और उसके अगले साल उस रीडिंग्स के आधार पर जो प्रेडिक्शंस थी उसके अनुसार था कि नहीं ये देख, तो 90% वो करेक्ट था। ऐसा नॉलेज है अपने, इस पर ध्यान जाएगा, इस पर रिसर्च होंगे तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएगी, लेकिन इम्पैक्ट रहेगा भारतीय ज्ञान परंपरा का, ये हो सकता है। दूसरा, एक जनरल एटमॉस्फेयर बाहर ऐसा तैयार हो रहा है कि समृद्धि में तो हमसे ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, सामरिक सामर्थ्य है, इसलिए अपना डोमिनेंस दिखा सकते हैं, उनको डोमिनेट कर भी सकते किसी किसी मामले में, परंतु अंदर से खोखले हो गए और दे डायरली नीड आवर ट्रेडिशन। इस स्थिति में वो लोग आ गए। मैं बाहर की यूनिवर्सिटी को यहां बुलाने में पक्ष में नहीं हूं, परंतु ये होता ही है तो वी कैन टर्न द टेबल्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। हमारी बुद्धि इधर लगनी चाहिए, तो इसको भी हम अपने अनुकूल बना लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। Due to paucity of time, we regret we are unable to take any further questions. I sincerely feel it was a great session. Now, as a token of gratitude and love from Laghu Udyog Bharati, I would request Shri H.V.S. Krishnadi to please present a book to Param Pushniya Sarasang Chalak. Namaskara. It is indeed my privilege and great honor for me to express gratitude on behalf of all the members of Laghu Udyog Bharati Karnataka and also members of IMS Foundation. I extend my heartfelt gratitude to our Parama Pujniya Dr. Mohan Bhagwat ji, who has taken out his valuable time in spite of his busy schedule. We are deeply humbled and honored by your gracious presence, and we take your valuable guidance and look forward for your continuous support. Once again, thank you, sir.